हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा फॉर मैथ्स। और दोस्तों, मैं इस बार आपके लिए कोई टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आने वाला है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11 एंड थ्रू दिस आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ क्लास 11। दोस्तों, इस बार मैथमेटिक्स क्लास 10th में दो तरह का था। वन वाज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, अनदर वन वाज बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर आपने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 041 ऑप्ट किया था तो ही आप क्लास 11 का ये मैथमेटिक्स जिसका कोड 041 है वो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय इट एंड you all try to enjoy throughout the year, this session. Although you are going to learn from your home, schools are closed, then also you can enjoy the new chapters, enjoy the new concepts. So दोस्तों, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है सेट्स। इसमें ये बहुत ही इजी चैप्टर होगा आपके लिए। सेट्स में आप सेट्स का मीनिंग, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम, देन यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, and then certain word problems are there, and this is very easy chapter for you. Second one is relation and function chapter. In this you will learn about ordered pairs, Cartesian product of sets, meaning of relation and function, and then many standard functions are there like modulus function, signum function, greatest integer function, identity function, and many more are there. And the most important thing you will learn, that is domain and range. And you all can see I have mentioned here very important for competitive examinations. So please go through it very carefully. Domain and range is very important for you. Our next chapter is trigonometric functions. See, trigonometric functions is not a chapter here for class 11. Wherever you will learn calculus or any other area, trigonometric function will be helpful to you. So I request you, please go through this chapter very carefully, understand all the concepts. This is not very difficult, but there are many formulae. तो आप फॉर्मूले को थोड़ा ट्रिक्स के साथ डेवलप करिए और आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर आएगा। यू विल एंजॉय इट, सो स्माइल लाइक दिस एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। देन यू विल हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो यू आर गोइंग टू वन स्टेप अहेड टू रियल नंबर्स. You are going to learn a new type of number, that is imaginary number. Then algebra of complex numbers, modulus and conjugate of complex numbers, argand plane. See, this argumented amplitude or amplitude, you can say, this is very important for you, and you will learn how to find a square root of complex numbers. So I am sure that you will enjoy this chapter also. ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको, काफ़ी इजी है और आप enjoy करेंगे। नेक्स्ट इज लीनियर इनइक्वलिटीज़। इसमें आप इनइक्वलिटीज़ मतलब इक्वेशन से आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। जब कोई एक्सप्रेशन और कंपैरिजन ऑफ एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होगा तो वो इनइक्वेशन होगा। देन वी लर्न हाउ टू सॉल्व एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो फॉर क्लास 11 इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, देन यू मस्ट गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ लिटिल बिट हायर लेवल. Otherwise it is easy chapter for you. Then permutation and combination is very important for competitive point of view. You will learn fundamental principle of counting, factorial notations, and basically the concept of permutations and combination. ये काफ़ी important है आपके लिए. All the problems are very tricky, काफ़ी logically reasoning based problems मिलेंगे आपको, and I assure you, if you will go through this very carefully, systematically, you will understand the basics, then you will really excel through this chapter. और ये JEE एडवांस, JEE मेन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद आपका आता है बाइनोमियल थ्योरम। आप बाइनोमियल थ्योरम पहले से भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, क्यूब ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें आप लोग वही पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन of any positive integral index and how to find the general term and middle term. This chapter is having a little bit more calculation, but if you are having the patience, see, in mathematics patience is very much required, so keep patience. You can do this chapter, although little bit some problems are little bit lengthy, having more calculations, but you can do it. Next is सीक्वेंस एंड सीरीज। आपने ये आधा चैप्टर पहले ही क्लास 10th में पढ़ लिया है, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कर चुके हैं, और यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, फिर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज और एम जी एम रिलेशन। ये चैप्टर भी आप कर सकते हैं। अलजेब्रा इज़ क्वाइट ईजी ऑलवेज। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो चैप्टर 10 है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. Here you will just recall the basics you have learned in class 10. Then slope of the line, angle between lines, equation of lines, distance of a point from a line and distance between two parallel lines you will find. And see, straight line for class 11 is completely formula based. अगर आपको फॉर्मूले पे कंट्रोल है आप आराम से ये चैप्टर कर सकते हैं. Now conic section, again this chapter is very important for you. क्लास 11 में बहुत इंट्रोडक्टरी दिया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आप आगे तक पढ़िए, एग्जाम्पलर भी बनाइए और थोड़ा अपने कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए. हाँ, अगर आप क्लास 11 तक का ही मैथ्स करना चाहते हैं देन दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी फॉर यू. नाउ इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. इट इज़ जस्ट इंट्रोडक्टरी हियर, so you will not feel difficulty. Very easy concepts are there, distance formula, section formula, these things are there. तो बहुत आसान लगेगा आपको और काफ़ी आराम से ये चैप्टर आप करेंगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है. अब आपका कैलकुलस शुरू हो जाता है 13 चैप्टर से, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. मुझे लगता है कैलकुलस कुछ ज़्यादा रहना चाहिए था, फिर भी नहीं है, कोई बात नहीं है. आप इसमें लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे. वैसे चेन रूल है नहीं 11th में, लेकिन मैंने लिख दिया है. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ गो थ्रू चेन रूल एंड डू सम लिटिल बिट हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन डेरिवेटिव्स. आपको 12 में प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग. स्माइल लाइक दिस स्माइली, वेरी इजी चैप्टर. आप अगर 1 घंटा अच्छे से पढ़ लें तो ये चैप्टर आराम से कर सकते हैं और इसका वेटेज भी बहुत कम होता है 11th में. देन स्टैटिस्टिक्स इज देयर. You all are knowing it is formula based. If you are having the concepts and if you understood once, you can do it very easily. थोड़ा calculations में आपको patience रखना पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं. And last is probability. Here probability is just continuation of class 10th. You will learn the axiomatic approach of probability. इसमें आपको random experiments पढ़ेंगे, event पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा probability 11th में नहीं है. इसके रिस्पेक्ट में 12 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. सो ये 16 चैप्टर्स मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है और मैं होप करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़ेंगे. यू विल एंजॉय योर क्लास 11. आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. इट इज़ कमिंग इन बाय 15th of July and then you all are welcome to class 11 to the virtual classroom of YouTube Misra for Maths. If you liked it, please subscribe, like and comment. You are most welcome. Thank you. आप सभी को धन्यवाद.